Good morning, students. Today we will learn lesson 4 Working with Flash CS6. In the previous video, you have seen what is Flash and how to start Flash. Yes, Flash is an animation software. Now, here we will learn about the components of Flash window. The workspace. This is called the Flash workspace. Flash is similar to the Paint software in Windows. It is just like a Paint software which you use in Windows. It has almost the same tools that Paint uses, but these tools are mainly used for animation. The tools are just similar to the Paint tools, but what is the difference? In Paint you cannot do animation, but in Flash you can give animation to your object. The workspace is the arrangement of various Flash elements. This is the Flash workspace, and all the Flash elements are arranged in this single window. Okay, all these are arranged in this single window. Such as the Tools panel. Look here, this is the Tools panel, Property panel. This is the Property panel. Here is the Library panel, and the last is the Stage. Okay, so this is the arrangement of various Flash elements. Now we will learn it separately. Next component is Stage. The stage is a drawing board where we can create graphics, animation, and can make modifications too. Stage is just like a drawing board, and here you can create graphics, you can give animation to your graphics, and you can also do modifications in your graphics. It is a large white space that is present at the center of the workspace. This is a large white space. You can see it here. Here is the large white space, and it is centered at the workspace, and by default the stage dimensions are 550 into 400 pixels. The gray area surrounding the stage is called the work area. Look here, the white area stage is surrounded by this gray area. Okay, so this gray area is called the work area. This area can contain graphic elements which can be moved to the stage as and when required. And this area contain the graphic elements. आप इसमें भी ड्राइंग बना सकते हो, वो उसमें रख सकते हो, लेकिन आपकी ड्राइंग वही डिस्प्ले करेगी जो आपकी स्टेज के अंदर बनी होगी. एक्स्ट्रा चीज़ों को आप बना करके यहाँ पे अपने इस वर्क एरिया में रख सकते हो, और वहाँ से इसको हम ड्रैग करके मूव करके अपने स्टेज पर लेके आते हैं. ओके, जब हमें इसकी नीड होती है. We can modify the view of the stage size by selecting the view zoom in or view zoom out option. So you can also change the view of the stage size. आप अपना ये जो स्टेज आपको दिख रहा है, आप इस स्टेज साइज के व्यू को बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्यू मेन्यू, जूम इन ऑप्शन, और विद द हेल्प ऑफ व्यू मेन्यू और जूम आउट ऑप्शन. ओके, next component is menu. Look here, this is the menu bar. The menu provides control over common functions like opening, closing, and saving of a document. Every application has menu bar. Like that, Flash also has menu bar which controls the common functions, like you can open the files from this menu bar, close your files, or save your files. Some other features like copying, pasting, calling up specific panels, and controlling overall Flash environment can be seen under menu options. Okay. Next component is Tools panel. Look here, this is the Tools panel. It has all the tools and which are mostly same as the Paint. The Tools panel consists of various tools to draw, paint, select, and modify objects in the workspace. The Tools panel is divided into 4 parts: Tools, View, Colors, and Options.
This is the tools panel and it is divided into 4 parts. Look here, this is your tools panel. First is the tools section. It contains tools that are used for drawing, painting and selecting object. This is your tools section and it contains the drawing tools. This is the drawing tools. From here you can draw the objects, and painting tools, you can also paint your object, or you can select these objects from this side. Okay. The view section. It consists of tools for zooming and panning the application window. View section contains this is the view section, which contains the hand tool and zoom control tool for zooming and panning the window. The colors section. It includes modifiers to select colors for the shape you draw, like using stroke and fill color picker. This is the color section and it has the tools related to the color. The option section. It displays modifiers for the currently selected tools. Modifiers affect the tool's painting or editing operations. Here is the option section and which has the modifiers for currently selected tools. जब भी आप कोई टूल यहाँ से या इधर से सिलेक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे ये मॉडिफायर नज़र आएंगे उसके, ठीक है। और इस मॉडिफायर पे आप जो भी, जैसे आपको लाइनिंग चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको वो टूल किस तरह का चाहिए। तो दिस इज कम्स अंडर ऑप्शन सेक्शन। ओके। नेक्स्ट कंपोनेंट इज टाइमलाइन। Look here, this is the timeline window. The timeline is a rectangular window that is present at the bottom of the stage. This timeline is present at the bottom of the stage. कहाँ मिलेगी आपको? स्टेज के नीचे की तरफ, स्टेज से जस्ट नीचे मिलेगा ये वाला आपको टाइमलाइन पैनल। It is the area where one controls the sequencing and timing of graphics and other elements of a movie. जब भी हम फ्लैश एनिमेशन तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो it is done with the help of this timeline window. Okay, इस टाइमलाइन विंडो से ही हमारा सारा एनिमेशन होता है। ये टाइमलाइन विंडो क्या करता है कि आपके मूवी के टाइम को कंट्रोल करता है और कौन सा ऑब्जेक्ट किस टाइम पर आना है उसके लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। The major component of the timeline are layers. ये इसके major components हैं। layer, frames. These rectangular boxes are called frames. Here you can see it well. And the playhead. And this is called the playhead. ये बताता है कि आप किस पोजीशन पर, किस नंबर पर चल रहे हो। ओके। Next component is frames. You can see the picture of frame here. Animation in Flash are created with the help of frames. आपके फ्लैश में जो एनिमेशंस क्रिएट होते हैं वो आपके इन फ्रेम्स की हेल्प से ही क्रिएट होते हैं। Frames in Flash can be defined as the little rectangular cells that appear on the timeline. फ्लैश में जो फ्रेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। You can see it in the picture here. And every fifth frame displays a number. हर फिफ्थ नंबर का जो फ्रेम है उसमें आपके नंबर्स दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 45, उसके बाद 50, फिर 55, इस तरह से 1 से लेकर के आगे तक सारे नंबर्स होते हैं। Every fifth frame displays a number which you can find on top of the timeline. Like films, Flash document divides the length of the time into frames. जिस तरह से फिल्म में होता है कि आपका जो पूरी फिल्म होती है उसको उसके टाइम को, उसके जितना भी इसमें टाइम यूज़ हो रहा है उसको फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है। उसी तरह से फ्लैश डॉक्यूमेंट में भी हम अपने उस पर्टिकुलर मूवी के टाइम को फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं। A frame displays the content of the movie at a specific moment of time. और फ्रेम का क्या काम होता है कि वो आपके उस मूवी जो आप तैयार कर रहे हो एनिमेशन, उसके कंटेंट को उस स्पेसिफिक टाइम में शो करता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो नंबर 50, तो 50 पे यहाँ पे
इस जगह पे आपका अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है तो जब ये 50 नंबर पर आपका टाइमलाइन चलेगा, प्ले हेड चलेगा, तो 50 नंबर पर ही वो ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा. इन द प्रैक्टिकल आई विल शो यू हाउ टू डू दिस. नेक्स्ट component is keyframes. Keyframes are special types of frames where we can define some change to an object's properties for an animation. तो की फ्रेम आपके स्पेशल फ्रेम्स होते हैं. इन दिस पिक्चर यू कैन सी इट हियर. ये आपके छोटे छोटे से रेक्टेंगुलर सेल्स क्या हैं, ये आपके फ्रेम्स हैं. ठीक है. और की फ्रेम का मतलब होता है ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर ये आपका की फ्रेम है. यानी कि आपने कोई एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, कोई नई पिक्चर यहाँ पे बनाई है, या आपने उसके पोजीशन को चेंज किया है, या आपने उसके कलर को चेंज किया है, या आपने उस पिक्चर के शेप को चेंज किया है. तो जो भी चेंजेस आप पिक्चर के साथ करते हो वो आपका इस समय पर यानी 10 सेकंड पर अगर वो हुआ है तो 10 सेकंड का जैसे ही आपका बार चलेगा वो 10 सेकंड पे उस चेंज को शो करेगा. तो इसमें आप देख रहे हो 2 तरह का फ्रेम है. एक है आपका एम्प्टी की फ्रेम और दूसरा है की फ्रेम विद कंटेंट. ये एम्प्टी मतलब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वो खाली की फ्रेम है. और ये होता है रिप्रेजेंट आपके वाइट डॉट से. और ये जो ब्लैक डॉट बना हुआ है इसका मतलब कि इसमें इस की फ्रेम में कोई ना कोई कंटेंट, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है जो आपके स्टेज पर ड्रॉ होगा. अ की फ्रेम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सॉलिड ब्लैक डॉट. और जो आपका की फ्रेम है वो सॉलिड ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट होता है. यहाँ पे आप ये एक डॉट देख रहे हो, इस डॉट से ये रिप्रेजेंट होता है. We can easily change the length of a twinned animation by dragging a keyframe in the timeline. अब ये देखिए आपका जो की फ्रेम आया है ये आया है 1 से लेकर 10 तक. लेकिन अगर आपको ये 10 सेकंड का नहीं चाहिए एनिमेशन, आपको अपने एनिमेशन के टाइम को घटाना है या बढ़ाना है, 15 सेकंड करना है, 20 सेकंड करना है या 5 सेकंड करना है, तो आपको ये जो यहाँ पर की फ्रेम दिख रहा है इसको आपको ड्रैग करना होगा. आप इसको जब ड्रैग करोगे तो इस तरह से आपकी जो मूवी की लेंथ है वो बढ़ जाएगी. Next is layers. This is the picture of layer. Layers are like transparent sheets stacked on top of one another. जो layers हैं वो आपकी transparent sheets होती हैं और वो एक के ऊपर एक stacked होती हैं, यानी एक के ऊपर एक रखी होती हैं. Each containing a different image that appears on the stage. और हर layer एक different image को contain करती है, जो कि आपके स्टेज में वो सारी images एक साथ नजर आती हैं. When we open a new Flash document, it displays only one layer, which contains its own timeline with endless frames. जब भी हम फ्लैश विंडो ओपन करते हैं, नई फाइल ओपन करते हैं, तो आपको एक ही लेयर नज़र आएगी और उसमें उसका फ्रेम नज़र आएगा. हर लेयर का अपना एक फ्रेम होता है. ठीक है. तो उस टाइम पे एक ही लेयर नज़र आएगी और उससे रिलेटेड उसका फ्रेम होगा. We can add more layers to organize the artwork and animation in a document. If need, you can add more layers from here. आप चाहो तो इसमें और भी layers ऐड कर सकते हो. We can draw and edit objects on one layer without affecting objects on another layer. हम ड्रॉ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को एडिट कर सकते हैं एक लेयर पर बिना दूसरी लेयर को अफेक्ट किए हुए. तो सपोज आपने एक हट बनाया एक अपनी ड्राइंग शीट पर, फिर उस पर आपने एक ट्रांसपेरेंट शीट रखी और उसके ऊपर एक ट्री बनाया. तो आपको क्या नज़र आएगा, बना तो दोनों अलग अलग पेज पर है, लेकिन जब आप एक साथ रखोगे तो ऐसा लगेगा कि हट और ट्री दोनों एक ही पेज पर बनी हुई हैं. यही काम आपके लेयर का होता है फ्लैश में. तो आप हर लेयर पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हो और आपका वो एक साथ एक जगह पे नजर आता है. द एक्टिव लेयर इज इंडिकेटेड विद अ पेंसिल आइकन नेक्स्ट टू द लेयर नेम ऑन द टाइमलाइन. जो आपकी एक्टिव लेयर होती है वो उस पर वो किससे नज़र आती है, पेंसिल आइकन से. यहाँ पर देखिए ये आपकी लेयर एक ही लेयर है यहाँ पर इस टाइम, तो ये एक्टिव है. और यहाँ पे जब कई लेयर्स आ जाती हैं तो ये जो पेंसिल आइकन है ये बताता है कि इस टाइम पे ये लेयर जो है आपकी वो एक्टिव लेयर है. ओके. नेक्स्ट इज प्ले हेड. The playhead indicates the current frame displayed on the stage. जो प्ले हेड होता है उसका क्या काम होता है कि वो बताता है कि आपका उस टाइम पे कौन सा फ्रेम स्टेज पर मौजूद है. जैसे ये जो दिख रहा है आपको, ये दिस इज योर प्ले हेड. ओके. और
इस टाइम ये फ्रेम नंबर 1 पर है, यानी आपका जो स्टार्टिंग स्टेज, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर ये मौजूद है। तो जैसे जैसे आपका एनिमेशन मूव करता जाता है, ये जो प्ले हेड है ये इस जगह से इस जगह पर आता चला जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस नंबर पर के सीन को देख रहे हो। It is represented by a red frame and red vertical line below it in the timeline window। और ये किस कलर से नज़र आता है? रेड कलर से नज़र आता है, और इसके नीचे एक रेड कलर की लाइनिंग होती है। ये आपकी टाइमलाइन विंडो में मौजूद होता है। It moves from left to right in the timeline as the movie proceeds through the frames। और ये कैसे जाता है? लेफ्ट टू राइट साइड। जैसे आप YouTube पे अगर कोई वीडियो देखते हो तो उसमें एक नीचे बार चलता रहता है और वो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। जो जो मूवी पार्ट निकल चुका होता है वो बार उस जगह को पे एक छोटा सा डॉट होता है जो बताता है कि आप किस जगह पर किस टाइम पर मौजूद हो। इसी तरह से सेम काम आपके प्ले हेड का भी होता है। द स्पीड ऑफ द प्ले हेड्स मूवमेंट इज बेस्ड ऑन द फ्रेम रेट सेटिंग। और ये जो आपका प्ले हेड है इसकी भी आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रेम रेट सेटिंग। ओके, next is property inspector। This is the property inspector। The property inspector is a panel that displays the properties of the selected object। ये आपका एक पैनल होता है जिसमें आपके जो भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करो तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको यहाँ प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर पे नजर आएंगी। सपोज आप कोई भी टूल सेलेक्ट करते हो तो टूल के से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे नजर आएंगी। ठीक है, लाइक टेक्स्ट, सिंबल, एन इमेज, अ लाइन और अ शेप। तो आप टेक्स्ट सेलेक्ट करो या कोई सिंबल सेलेक्ट करो, कोई इमेज सेलेक्ट करो, कोई लाइन या फिर कोई शेप सेलेक्ट करो, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज पैनल में शो होंगी। द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑल्सो वेरीज इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। जो आपका जो प्रॉपर्टीज पैनल है, जो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर्टी पैनल भी चेंज होता रहेगा। You can make changes to the object or document attributes in the property inspector। और यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट के, अपने डॉक्यूमेंट के एट्रीब्यूट्स को भी सेट कर सकते हो। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।